Very good afternoon, friends. Once again, welcome to this mega tele-webinar series. So this is our fourth day. So I warm welcome all the members. So friends, it's our privilege that we are having today's chief guest, CA Shweta Jain, a non-chartered accountant and past chairperson of Vasai branch of WRC of ICI. So I warm welcome Shweta madam on this platform and our guide mentor CATC Bafna sir, our today's speaker and our co-organizer Punit Bhai and Hiral Bhai, and our founder member C. Amit Gandhi and Mr. Karan Bhavsa. I welcome all the members to this platform. Uh, Now I request CAPC Bafna sir to introduce our today's speaker, CA Punit Mehta sir, and inaugurate the session. Thank you, Abhishek. Hello, are you hearing? Yes, sir. Yes. Okay. So thank you, Abhishek, and most welcome all the nice VIPs of this program, especially the Shweta Jain, who is coming from Vasai branch. So most welcome of this Shweta Jain also, and Thank you. our speaker, our this key speaker, Puneet Mehta, Hiral Soni ji, all are most welcome at our this stage. Now I am giving opportunity to welcome of this eminent speaker, our Puneet Mehta, and he is the director MTech Solution Private Limited, and Mr. Hiral Soni, who are today's speaker on the Delhi ERP9. Okay, both are having vast experience and operating installation and troubleshooters for the Tele ERP9 since a long time. Nowadays, the latest developments and version of Tele ERP9 are on technical advanced stage, and all returns and reports are preparing based on the project data on the basis of Tele ERP9 only. So, this institutional knowledge of is must for the Tele. As regards this introduction of our eminent speaker, CA Puneet Mehta, today I got this profile. Earlier I was not having the profile, so I couldn't tell to our viewers also, because he is a very competent, enthusiastic tele operator, this master. And he is a coordinator to the book Tele for Professional, published by WIC, which is a very credit for this person as a speaker, and co-opted member of the Digital Accounting and Assurance Board of ICICI New Delhi. Development full in integrated model for builders, C offices, shipping, C&F agents, school, college, etc. I was not aware about all these experiences, so it's a wonder for me, and is very important for the viewers that they should know about the speaker's qualification and experiences who is telling us about Tele ERP9. And played a private role in the development of new MWET annexure to Tele ERP9 at R&D in Maharashtra State Government through NIIT. He is a member of Information Technology Committee of WRC for since many years. Address Nasian on GST Suvidha provider problems and possible suitors for that. And he is also visiting the faculties for the study circles, and treasurer of Jain Chartered Accountant Federation, which is more active in the social activities. He is doing. He is a founder member of the JCF. He is very proud to be, or very proud of this. He is member of the JCF. He is speaking on this platform, and he is also a joint treasurer of the Pasma Jain Vidyalaya, Wakrana Pali. He is a social worker. He is very active in the society also. So most welcome such an eminent speaker on this platform, Puneet Mehta. Thank you very much. Thank you, Now Bafna ji. this commissioner of deputy commissioner of GST, most welcome of the gentleman also. So I'm sorry, so I couldn't name. Yes. Yes, sir. Gajanan sir, we warm welcome. Gajanan sir is Deputy Commissioner of GST of State Government of Maharashtra. So warm welcome, sir. Friends, now I request CA Shweta Jain. She is from Vasai. She was past chairman of
at Vasai branch of WIRC. She is also core committee member and secretary of JCA, and she is very active and she always helps young chartered accountants. She always comes to our platform. So thank you very much, ma'am. So I request you to please give a welcome address and a keynote address to our members. Thank you, Abhishek, for the wonderful introduction. Very good evening to everyone. First, let me congratulate to team What Next, Abhishek, Virag, Bafnaji, and other organizing team member Amit, Karan, and others also for this wonderful initiative to educate the member by various means during this lockdown period. And thank you for inviting me here. It's my privilege and pleasure also to be here and part of this 5 days workshop on tele. And tele is a necessity. We all know that for almost all the chartered accountant in practice. And we are unaware, frankly, we are unaware most of the features of it. And I was going through the program structure of this 5 days. So this program is designed in a very well mannered. And अगर tele की बात आती है तो पुनीत का नाम by default आता है. So he is really very good speaker and very vast experience also in this subject. And I'm sure all the participants will be benefited from this all this 5 days session. And also would like to congratulate to Puneet for being an instrumental of this 5 days program structure. Really excellent, wonderful program. My best wishes to all of you. And once again, thank you so much for inviting me. Keep doing great work. Good going. Thank you. Thank you so much. Thank you, Shwetaji. Yes, madam. Thank you very much, friends. As I already mentioned, ma'am is always available for all the fellow members. She always ready to help young chartered accountant. So she is available at her office. So I request ma'am, all of members, if you are having any queries related to ICI, you can connect her. She is very reachable person. So thank you very much, ma'am, for joining us. Now I request Thank you. yes, ma'am. Now I request our organizer, Mr. Karan Bhavsar, to give our thanks to our ma'am and other dignitaries on screen. Thank you, Abhishek. Very good afternoon to all of you. Today is our special guest, Shweta ma'am. Warm welcome you on our platform, What Next Theme for Professionals. Thank you for giving us your valuable time on our platform. I also welcome our senior member and mentor, TC Bafna sir, and our today's speaker, CA Puneet Mehta and Mr. Hiral Soni sir. Thank you very much for joining us, and I welcome all the attendees on our today's 4th day session. Not taking much time, I request Abhishek to proceed and please start with this session. Thank you. Yes, sure. Yeah, thank you, Karan bhai. Now I request CA Puneet Mehta and Mr. Hiral Soni to take over the charge and start today's session. Thank you, Shwetaji. Thank you very much, TC Bafnaji, for your kind introduction. And I am once again thankful for Gajanan Anande sir for being here and encouraging us to do more, to learn more of this. That is the inquisitiveness I really like about him, that he's always there with us and tele being one subject. Friends, I'll just tell you that years ago he was there with the Maharashtra government for IT solutions, but now he is there in different department. But IT being somewhere in the blood, he always loved to know what is there coming in new information technology this particular era. And tally is also one particular subject that he wants to learn, and I'm really thankful for him that he's present today also. Thank you, Abhishek bhai, for this kind introduction and everything. Shweta ji,
In your guidance, we've been doing a lot of work, and definitely these sessions of 5 days we will be taking up once again in a different manner at the WRC level also, that we are already working on that. With the So Very support, good, not very good. guidance. Definitely with the support. yeah, it's everyone, all of us are together on that. Yeah. Yes, great So initiative. with these few words, let me start today's session. As we have already been mentioned, that today it is going to be on audit tools. We are going to discuss on audit tools. We are going to discuss on the cost center part, the MIS reporting part, and the final this thing, interest calculation. And tomorrow we are going to discuss on the forex and the security aspects and all those things. So with these few words, let us start the agenda for the day. What is it and what are we going to learn? So Hiral bhai, please take over. Yes, sir. Yeah. So agenda for the day is audit analysis, audit activation, audit tools, then other audit procedures. Then we will see cost center reporting, how to enable the cost center, how to use it in the invoices. Then we will see interest calculations. Then we will see some useful customizations. Then manufacturing process industry, how do they work? How the manufacturing entries take place in the tally. And lastly, we will see important shortcut keys. Thank you. Yes, sir. So for audit analysis, for activation of audit, what do we know? What do we want to do? Friends, years ago, it was only in auditor version that Tally had provided this feature of Tally audit tool. It is a wonderful feature. Today, we are going to devote approximately 30 to 35 minutes for auditing vouching. How we can do it? It is important for the chartered accountant and the chartered accountant community to learn, but also this is more important from business perspective and the accounts perspective. I'll let you know in few minutes what are the different aspects of audit that we are going to learn. So that is one thing that it is there. So coming to Tally, so to start this audit activation, what is required is that you have to have security enabled. Hiral, can we go Yes, on sir. the Tally screen? Yes, definitely. Yeah. So the first and foremost requirement is go to Alt F3, company alteration, and enable this security. Okay. In this, you have to enable the security control. Use security control as yes. Once you enable this security control, you will be asked for the name of the administrator and the password. So with this, we can add the username, that is the main owner of the company, and the password whatever we may require. Here I think hereby is given just a small password AA, just to ensure that we don't waste time on this thing. But I would recommend that you keep a slightly complex password, because this is your own data. So you have to have this very important password in a very slightly complex manner. Further, use of Tally audit features, this is a different than using the audit module. Okay, audit features is the Tally audit features we will discuss a little later, maybe tomorrow when we are discussing about the security. But today we are going to discuss the inbuilt audit functionalities available. Okay, so this is what we are going to do. Also understand this one more important function is disallow opening in educational mode. This allows you to ensure that whenever a data is being copied from your company folder, and if somebody wants to restore the data, he need to have a license. Very much important. If he is not having a license, if he is trying to open in an educational version, the data won't get open. So you can disallow that. Okay, you can keep it as yes. So only the licensed version data would get open. As of now, we are not going to discuss much on this. We are going to discuss on the audit and compliance module. Come back to gateway of Tally. Yeah.
So friends, here we have loaded two companies, that is previous year and current year. Okay, current year, whenever so there is a possibility that you might have split the data and after the year end, and there is a possibility that you might have continued the data. If the data is continued, then there is no question of balances being checked or the chart of accounts being checked. There are very few things that would be there. But if the data is not continued, as what we are seeing in the current scenario, then you will have to load both the companies. So please load the current year company first. Yeah, by clicking on that company, and then we go in this audit and compliance menu. While I am going to this audit and compliance menu, and we are checking on this, can any of you tell me that while this documentation, how many of us have used this module? By just show of hands, or by just putting your remarks in these questions. So I will come to know what is the scenario at with the participants. How many of us have used this audit module? Yeah, Manita is saying no. Further, not used. Ashok Ram is saying not used. Subodh not used. Ujjwali, oh ho ho ho. Oh, so I think 90% are saying not used. Almost 90, more than 90%. Manish Bhai is saying not used. Reena is saying not used. Pooja is said okay. Prashad. Then this is going to be one of the most interesting sessions. You saw the first day, second day, third day. There are some few automations that we learned. Today we are going to see one more new automation, or at least more than one, that you will going to learn. Okay. The important part. Let's go to audit analysis. Yes, sir. Audit and analysis. The second one, audit and analysis. Yes. So once you go this into this audit and analysis, you find that the audit period in this demo data, it is somewhere around 11-12, but audit period is 11-12, and your previous audit period, first you have to load the company. The first thing that you have to do is to load the company. How would you load the company? As Hiral Bhai has already started on the gateway of Tally, there must be two companies which must be loaded. Then how do you load this company? By you clicking on button called Control F3, compare. Yeah. Compare So company. yes, so I will select this Control F3, and I will select the previous year company, which is Previous the year Poonam company. India previous year. So now if you see on the right hand side, it is visible that there are two companies which are loaded, previous year company and the first company on which we are already working, right? So there are few things that this is your audit analysis dashboard. Let us understand this dashboard first, and then we go in each of this part. Audit क्या होता है? Audit is checking of your records. Checking of your records means two different aspect. एक आपका master verifications होते हैं, जहां पे आप masters को verify करते हैं कि whether they are right or wrong, और मतलब आपको decision लेना है कि what is the working that user has made. Okay, एक ये master से related रहता है, और एक रहता है जो आपको vouching करना है, individual documents देखने के बाद में checking करना है. ओके, सो ये डैशबोर्ड में आप अगर देखेंगे तो आपको नीचे बॉटम पार्ट में दिखेगा जहां पे वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर परसेंटेज. इस कंपनी में कुछ 1123 वाउचर्स है. अभी फिलहाल कुछ भी सैंपल नहीं किया हुआ है. इट इज इम्पॉसिबल दैट हम लोग पूरे सैंपल के वाउचर्स करते हैं, एंड उसमें से ऑडिट कितना किया, इंटरनल ऑब्जर्वेशन, क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड, और कितनों को री ऑडिट करना है, ये अभी पूरा ब्लैंक है. वी विल सी एज एंड व्हेन वी प्रोग्रेस, उसमें जाएंगे हम लोग. बट अभी फिलहाल हम लोग ऊपर वाले पार्ट में आएंगे जहां पे वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, स्टॉक आइटम एंड बैलेंसेस, ये तीन को हम लोग साथ में लेंगे. ओके,
क्यों ये 3 को साथ में लेंगे? बिकॉज तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है कि जहां पे आपको कुछ मास्टर्स को ऑब्जर्व करना है कि आपकी इस साल की मास्टर्स की रिपोर्टिंग और पिछले साल की मास्टर्स की रिपोर्टिंग में डिफरेंस कहाँ है. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ट ऑफ अकाउंट्स? चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर अकाउंटिंग नोमेनक्लेचर. फ्रेंड्स, हमने देखा 2 दिन से पहले जब मैंने डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बोला था हिरल भाई को, तो उन्होंने जो पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिखाया था, दैट इज नथिंग बट योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स व्हिच विल से दैट आपका लेजर कौन से ग्रुप में है और उसका सब ग्रुप कौन सा है, उसका मेन ग्रुप कौन सा है. वो डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स इज जस्ट डिस्प्लेइंग इट. अभी हम लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स करेंगे. हिरल भाई, वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाइए. यस सर. ओके, इसमें जैसे ही जाते हैं वहां पे हमको 7-8 अलग अलग ऑप्शंस आते हैं कि रेवेन्यू लेजर्स हैविंग ओपनिंग बैलेंसेस यूज्ड इन करंट ईयर. ये मल्टीपल एक्सेप्शंस है. ये क्या है? एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस इसीलिए है कि टैली ने इनबिल्ट इंटेलिजेंस डाला हुआ है सिस्टम में, एमआईएस में. तो उस एमआईएस के हिसाब से वी गेट सर्टेन इनबिल्ट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली. ओके, सो पहले हम लोग F12 करेंगे. F12 कीजिए. यस सर. ऑल एक्सेप्शंस एंटर एंड खाली नॉन रेवेन्यू पे फोकस कीजिए. सी, नॉन रेवेन्यू और रेवेन्यू में क्या फर्क है? नॉन रेवेन्यू इज दोज व्हिच आर रिलेटेड टू लेजर ऑफ फॉलोइंग टाइप, दोज व्हिच आर रिलेटेड टू बैलेंस शीट, एंड रेवेन्यू व्हिच आर रिलेटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्योंकि आपकी कोई भी लेजर अकाउंट्स की रिपोर्ट होगी, या तो उसको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना है या तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना है. तो हम लोग पहले बैलेंस शीट आइटम पे फोकस करते हैं ताकि हम लोग फिर रेवेन्यू आइटम्स पे जा सके. एंटर यस, एंटर. ओके, अभी ये नॉन रेवेन्यू आइटम्स में हम लोग अगर देखेंगे तो मल्टीपल चीजें अवेलेबल है, क्योंकि देयर इज अ पॉसिटी ऑफ टाइम. और आपने देखा हिरल भाई ने अबाउट 8 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एजेंडा दिखाया है. सो इट इज नॉट वेरी पॉसिबल दैट हम लोग सब चीजें सीखे, बट लेट अस लुक एट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. वन इज अकाउंट्स स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर. जो अकाउंट्स स्टार्ट हुए और एंड हो गए इन द करंट ईयर. ओके, उनका बैलेंस शीट की एंट्री करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है इन द बैलेंस शीट, बिकॉज मे बी कुछ डेटर्स ऐसे हो जिसको खाली हमने बिल एकोमोडेशन के लिए दिए हो और उसका माल एंट्रीज करके खत्म कर दिया हो, मे बी, और इट कुड बी एनीथिंग. लोन अकाउंट्स जो डेटर्स में रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, डेटर्स किसी भी तरह से हो सकता है. सो ऑडिट करते वक्त आपको ये सब ऑप्शंस जानना जरूरी है. ये इनबिल्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है जो टैली आपको प्रोवाइड कर रहा है. ओके, गो टू अकाउंट्स स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर. या सो इस तरह से हमको डिटेल्स मिल जाता है कि कैसा है. अभी आप देखेंगे कि कुछ का वेरिफिकेशन स्टेटस अपडेट किया हुआ है और कुछ को ऑन होल्ड किया है. तो वो कैसे किया है? वो सिंपल है. टैली में अगर आपको टिक करना है ना, तो आपको खाली स्पेस बार प्रेस करना है. आप अगर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो टिक हो जाता है, और स्पेस जैसे ही वो हाईलाइट हो गया, स्पेस बार प्रेस किया, हाईलाइट हो गया, और राइट साइड में बटन है वेरीफाई. सो इधर उन्होंने ऑन होल्ड का जो रिमार्क डाला था वो आप चेंज कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं. ओके, वेरीफाइड और आपका रिमार्क डाल सकते हैं. इट्स फाइन. ओके और फाइन. यस. अभी हिरल भाई ने देखा कि यार मेरे पास तो 500 लेजर्स है, मैं एक एक को कब तक वेरीफाई करते रहूंगा, ऐसे एक एक को करूंगा तो कैसे चलेगा. तो यहाँ पे एक बटन है कॉल कंट्रोल स्पेस सिलेक्ट ऑल. अगर आपको लगता है सब बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नवीन ट्रेडर्स का बैलेंस है या जो भी है, आप इसमें इंडिविजुअली जाके चेक कर सकते हैं. और एक बटन है यहाँ पे राइट हैंड साइड में शो लेजर. अगर आपको देखना है, नवीन ट्रेडर्स में जाइए, आप नवीन ट्रेडर्स को हाईलाइट कीजिए हिरल भाई. या हाँ, और राइट हैंड साइड में एक बटन है शो लेजर्स. तो उसकी ट्रांजैक्शन आ गई. अच्छा ठीक है यार, परचेज है, पेमेंट है,
आई एम हैप्पी अबाउट इट, नो प्रॉब्लम, एस्केप कीजिए। इस तरह से आपने सारे लेजर्स को वेरीफाई किया, कंट्रोल स्पेस कर दीजिए। कंट्रोल स्पेस देखिए, ये शॉर्टकट की है। हमारा एक पॉइंट जो हमने बताया था कि वी विल बी यूजिंग सर्टेन शॉर्टकट कीज, ये आपको अदरवाइज भी टैली में आता है। जब आप कुछ कंट्रोल ए करते हैं, मतलब जहां पे लिस्ट ऑफ लेजर्स रहता है, वहां पे ये सिलेक्शंस कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस किया, ओके, और इसके बाद में आप सबको साथ में वेरीफाई कर सकते हैं। Alt F9 verify, yes, verified, checked, okay। इस तरह से आपने एक एक्सेप्शन को सब में वेरीफाई कर दिया, एस्केप कर दीजिए बस। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो अ मैकेनिज्म, जैसे आपका पेपर एंड पेन यूज न कर सके तो टैली ने इसी में ऑलरेडी नोट्स डालने का ऑप्शन दे दिया है, ओके। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो देयर आर मल्टीपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नॉट अवेलेबल इन द करंट ईयर, मतलब उसने प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया। ऐसे 9 लेजर है जो पिछले साल में थे डेटा में, बट इस साल में नहीं है। क्यों ऐसा? कुछ ऐसे थे जो यूज ही नहीं हुए, क्रिएट तो किए बट यूज नहीं किए। कुछ ऐसे हैं जो बैलेंस खाली कैरी फॉरवर्ड हुए हैं और उसका बैलेंस इस साल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। लास्ट ईयर बैलेंस था कैरी फॉरवर्ड और इस साल में खाली 1-2 ट्रांजैक्शन यूज किए, ओनली बैलेंस इज नो ट्रांजैक्शन। और 5 लेजर ऐसे हैं जिनका लेजर ग्रुपिंग कुछ और था पिछले साल में, इस साल में ग्रुपिंग कुछ और है। हमने जैसे जो स्ट्रक्चर रखा है, ओके, वैसे 5 लेजर है। इस तरह के आप मल्टीपल एक्सेप्शन में टैली में देखिए, एक चीज है, अगर समझ में आए तो एंटर करना, नहीं समझ में आए तो एस्केप कर देना। अभी जैसे रीग्रुप्ड आपको समझना है कि क्या चीज कैसे आपको वेरीफाई करना है, तो आप एंटर करके अंदर जाइए, रीग्रुप्ड, यस। तो इस तरह से आपको मालूम पड़ जाता है पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में जो कैनरा बैंक था, वो बैंक अकाउंट्स के, एक मिनट, क्या था, सिक्योर्ड लोन, सॉरी, HDFC सेवर बैंक, they were under secured loan in this year, and in this under earlier year it was under loans liability। इस तरह से आपके प्राइमरी ग्रुप्स की कुछ चेंजेस किए हुए रहेंगे। पॉसिबली उन्होंने बैंक, कैनरा बैंक का भी बैंक अकाउंट्स का ग्रुप बनाया होगा, इसीलिए वो चेंज हुआ है वैसा। सो इस तरह से रीग्रुपिंग जो लेजर्स की हुई होगी उसके लिए एस्केप कीजिए। वेरिफिकेशन हमने देख लिया। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो ऑटोमेशन टैली ने बहुत ब्यूटीफुली लेके आए हैं। एस्केप कीजिए। सेम वे में आप देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स सिमिलर है। आई विल नॉट गो डीप इनटू डिटेल, खाली 10 सेकंड के लिए आप वो ओपन कर दीजिए। डिफरेंसेस इन ओपनिंग स्टॉक, नॉट अवेलेबल इन करंट ईयर, नॉट यूज्ड, एस्केप। या ओके, 10 सेकंड के लिए ये रहने दीजिए बस। नॉट अवेलेबल इन करंट ईयर, नॉट यूज्ड, आई डोंट वांट टू रिपीट माय सेल्फ, ये हमने चेक कर दिया है, इन सब टर्म्स का मतलब क्या है। एस्केप कीजिए। Verification of balances, now this is really a beautiful process that Tally has brought in। ये क्या करता है, ये जो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट जैसे कंपेयर किया ना, वैसे बैलेंसेस भी कंपेयर कर लेता है। पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस क्या था और इस साल का ओपनिंग बैलेंस क्या है। वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस में जाइए। यस, इसमें अगर राइट साइड में देखेंगे तो देयर इज अ बटन कॉल्ड ओनली एक्सेप्शन, Alt X, ओके। तो आपको मतलब आप जो यू आर लुकिंग एट अ वेरी स्मॉल स्क्रीन, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो अपने को नहीं समझ में आता है कभी कभार, तो वी आर लुकिंग एट अ वेरी क्रिस्प सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो लोन्स लायबिलिटी में देयर इज अ डिफरेंस, इन द करंट लायबिलिटीज देयर इज अ डिफरेंस। इसको Alt F1 करके हम लोग अगर डिटेल्ड में जाएंगे तो इंडिविजुअल लेजर वाइज में हम लोग चेक कर पाएंगे। Alt F1 कीजिए। या सो दिस, ये ऑटोमेटिक आ गया, पिछले साल का क्या था और इस साल का क्या था। जस्ट बिकॉज आपने ये प्रीवियस ईयर की कंपनी लोड की थी, इसलिए उसने इमीडिएटली बता दिया। इफ यू सी देयर इज अ क्लियर कट बैलेंस, जो लास्ट ईयर मारुति बैंकर्स 4th या 5th इट वाज देयर एज 6,40,100, और इस साल में उसको ओपनिंग बैलेंस करते हुए मुथूट फाइनेंस कर दिया। मतलब यहाँ पे जब कंपनी ने ये जो बेसिक इंटेलिजेंस है
ये टैली खुद लेके आया आपके पास कि भाई लास्ट ईयर तो यार इसने ये नाम रखा था और इस साल तो मारुति वेंकट्स नाम का कोई कंपनी नहीं दिख रहा है, बट अंडर द सेम हेडिंग वी आर फाइंडिंग वन मोर लेजर अकाउंट विद अ सिमिलर नेम, दैट इज उसके नीचे ही नॉट सिमिलर नेम बट अ डिफरेंट नेम, बट वो एम से उसने इंडेक्स कर दिया है मुथूट फाइनेंस। तो इफ यू फील इट इज फाइन, ओके स्पेस बार करा दीजिए दोनों को, या मुथूट फाइनेंस पे स्पेस बार कीजिए, यू कैन से ओके, वेरीफाई कर सकते हैं। So I'll press Alt F9 here for verification and मैं verified यहाँ पे select करके note डाल दूंगा verified। सेम वे में बाकी के आप लेजर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। दिस कंपैरिजन of ledger balances of previous year and current year, normally an article clerk takes about 2 days, depending of course depending on the number of masters it is there, but if you see टैली ने ये 2 मिनट के अंदर अंदर कर दिया, खाली आपको 2 कंपनी लोड करनी है। हाउ मेनी ऑफ अस हैव लाइक्ड दिस फीचर? ये फीचर अच्छा है या बुरा है, ये समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है? बिकॉज दिस सेव्स टाइम। अगर आप ऑडिट से रिलेटेड है या इनफैक्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, स्टिल अगर आप आपकी कंपनी में ऑपरेट करेंगे तो आपको लगेगा कि यार नॉर्मली हम लोगों को जैसे ईयर स्टार्ट होते ही हम लोग स्प्लिट कर देते हैं और फिर जब ओपनिंग बैलेंस का नेक्स्ट ईयर जब डेटा आता है तभी हम लोग कंपेयर करने को चालू करते हैं और मैन्युअली कंपेयर करते हैं। ईयर सिस्टम कंपेयर्स ऑन इट्स। तो जरा एक आपके जो ओपिनियन है या व्यू पॉइंट्स है, इफ यू कैन जस्ट पुट इट इन द क्वेश्चंस, इट वुड बी रियली thankful for me. Yes sir, the questions are the comments are very positive. They have liked the Yes. this feature, yeah definitely, because it's kind Ujjwal of is ये पूरा saying system brilliant. audit हो गया। Yes sir. Good feature. Shruti is saying please repeat it. I will just repeat the basic steps once again. Thank you for your For modern age auditors it is very useful that ये पूरा system audit एक screen में हो जाता है। even जो paper हम print करते हैं वो भी waste नहीं होता है, and system से ही हमने पूरा audit कर लिया majority। yes. So here we are not talking of merging it. Here we are talking of identifying the gaps. Escape कीजिए। Verification of balances, opening balances। एक बार फिर से जाइए, हाँ उसमें एंटर कीजिए वेरिफिकेशन बैलेंसेस में। yes हाँ, here we are, if you see those which are in red are identified as gaps, तो हम लोग पहले gaps के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ओके अच्छा, ये रिपोर्ट कैसे आया है? ये रिपोर्ट जैसे बताया, मैं जैसे श्रुति ने पूछा एक बार फिर से बता रहा हूँ। ऑडिट एंड कंप्लायंस मेन्यू में गया, पहले प्रीवियस ईयर की कंपनी लोड की और फिर ऑडिट एनालिसिस में जाके वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस में जाके ये रिपोर्ट चेक कर लिया, कुछ भी नहीं किया है। This works on its own. You don't need to worry about it. Okay. अभी यहाँ पे hello Hiral bhai, please continue. yes sir yeah My so audio is getting should I, okay yeah, it is re-established. Sorry, we'll come back. yeah Okay. yeah Because of some internet connectivity, the voice had got lost. Sorry. So Yes. if you see audit and analysis में फिर से जाइए हिरल भाई। yeah वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस में yeah here there is one more wonderful feature जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है, that is Alt V, balance variance। ये आपका प्रीवियस ईयर करंट ईयर खुद कॉपी करके बता देगा कि आपका कैसा है। ओके, वेरिएंस कैसा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जो आपके टोटल ईयर में
एक्सपेंसेस है, अगर आपको खाली इंडिविजुअल एक्सपेंसेस या इंडिविजुअल बैलेंस शीट आइटम्स से ही रिफ्लेक्ट करना है ना, तो आपको इमीडिएटली कंपेयर करके दे देता है कि भाई जो कॉमन है, नेम है, ओके, इफ देयर इज एन एक्सपेंस और इफ देयर इज समथिंग, जैसे अभी आप देखो कि ऑडिट फीस है, ऑडिट फीस पे हाईलाइट, लास्ट ईयर इट वाज 84,000 and okay, audit fees last year it was just 5,000, Yeah. and now it is 3 lakh. So there is a difference of 5,900. I really love that auditor जिसका इतना huge jump आ गया because of consulting on Tally maybe or whatever it is. But this is how you can compare your working. आप आपके expenses का और working का normally आप इस दोनों चीज को आप export करते थे Excel में और फिर वहां से variance निकाल सकते थे Excel में. Your Tally itself is providing you the difference. Okay, so this is very one of the nice features that I really liked it. Escape कीजिए. Yeah. Hiral bhai, just एक minute continue कीजिए. Yes, sir. So then now we will see we have seen the verification of ledger, the stock item, chart of accounts. Then we will see the analytical procedures. So for analytical procedures इसमें जाने के लिए मैं data analysis ये टैब में analytical procedures में जाऊंगा. Now in this analytical procedures मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि कौन से ग्रुप, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को अगर मुझे कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक बेस ग्रुप लेता हूँ, सेल्स अकाउंट आई एम कंपेयरिंग विथ, सपोज मेरा आइदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, या तो सपोज मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, उसके साथ अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं उसको भी कंपेयर कर सकता हूँ. तो ये आपको इजीली कंपेयर करके देगा कि जो मेरा सेल्स अकाउंट का रेशियो मींस प्रपोर्शन ऑफ माय एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट टू माय सेल्स अकाउंट, तो उसका परसेंटेज आपको दिखा देगा कि ये लास्ट ईयर में फॉर एग्जांपल ये डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लेता हूँ, तो प्रीवियस ईयर में मेरा 1.93% था ऑफ द सेल्स अकाउंट, एंड ये ईयर में मैंने 1.34% हुआ है, मींस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है. सिमिलरली सपोज यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस है, जो मेरा प्रीवियस ईयर में 0.01% था ऑफ द सेल्स, जो करंट ईयर में 0.02% है, मतलब बढ़ गया है. तो कितने से बढ़ गया है? 272% से बढ़ा है. सो दिस वे यू कैन एनालाइज कौन से ग्रुप से विथ ग्रुप या लेजर का कंपैरिजन करना है, या ग्रुप वर्सेस ग्रुप कंपैरिजन करना है, आप अकॉर्डिंगली कंपेयर कर सकते हो, सो दैट यू कैन फाइंड द वेरिएंसेस. तो फ्रेंड्स, ये ऑडिट हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमको चेक करना है हमारे डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है. सो ये जो कंपैरिजन है बिटवीन सेल्स एंड एक्सपेंसेस या कॉस्ट सेंटर एंड सेल, टेकिंग सेल्स एज द बेसिस एंड कॉस्ट सेंटर से करना है या मल्टीपल जगह से करना है, इट इज लाइक ये बहुत ब्यूटीफुल एमआईएस आपको करके दे देता है. ओके, कम बैक टू द अदर स्क्रीन. या ओके, सो द नेक्स्ट प्रोसेस, ये एनालिटिकल प्रोसेस बहुत अच्छा है. यू नीड टू प्रैक्टिस इट. आप ये कॉस्ट सेंटर के साथ में, ग्रुप्स के साथ में, लेजर टू लेजर, जैसे इंडिविजुअल का तो हमने क्लोजिंग बैलेंस का वेरिएंस देखा था पहले में, बट यहाँ पे आप पूरे साल का लेजर टू लेजर ईच ऑफ दिस थिंग, कितना डेबिट कितना क्रेडिट है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं. ओके, yesterday we had seen our order processing. तो उसमें हमने देखा था कि ट्रैकिंग नंबर यूज हो रहा है when we are having a receipt of goods and compared linked it with the purchase. So ये जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स इज नथिंग बट आपको इसमें बता देता है कि आपके कितने गुड्स रिसीव हुए हैं बट बिल उसके बुक नहीं हुए हैं, या फिर आपने डिलीवरी चलान की, डिलीवरी गुड्स डिलीवर्ड है बट बिल्स नॉट मेड. तो इस तरह से आप पहले जाके उनको बोल सकते हैं. ऑडिट इज नथिंग बट फाइनलाइजेशन. जब आप अकाउंट्स का कर रहे हैं तो ये आपको बेसिक आर्किटेक्चर ध्यान में रखना जरूरी है कि कोई भी आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए होंगे. ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग नेट
पेबल्स रिसीवेबल, ये सब MIS है, वो आपको नॉर्मल ट्रायल बैलेंस से भी मिलता है, बट हियर इट इज अ क्रिस्प वे ऑफ शोइंग दैट इतने आपके बिल्स जो है वो जनरेट नहीं हुए, कुछ डिलीवर हो गए हैं एक, और उसका अमाउंट भी क्या है. सो यू कैन आस्क योर अकाउंटिंग टीम दैट प्लीज जनरेट द इनवॉइसेस बिकॉज उसका अकाउंटिंग टर्म 31 मार्च कंप्लीट हो गया है. सिमिलरली पेंडिंग परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर का क्रिस्प समरी आ रहा है इधर. एस्केप, दैट्स इट. या हाँ, अच्छा. अभी पीरियोडिक पेमेंट्स एंड रिसीट्स, हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट आपके ऐसे कितने लेजर्स है जो रिपीटेड है. अभी जैसे रेंट है, रेंट हैज टू कम 12 टाइम्स आइडियली. इफ अगर आपका पूरे साल में ऑफिस का रेंट है, तो इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं कि कुछ लेजर्स का आप वर्किंग करके कर सकते हैं कि ये आपका जो लेजर्स है वो रेंट है. सो हियर यू कैन गो इन कंट्रोल F9. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ, ये आपके एवरी मंथ में आने चाहिए. ओके, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं. सपोज आपने एक मिनट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, देखिए. या इलेक्ट्रिसिटी है, तो हाँ, आई विल यार इसको मार्क कर दीजिए एंड से अपडेट. अपडेट एंड या कंट्रोल A, या एस्केप. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया. तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि द नंबर ऑफ वाउचर्स इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज जस्ट 7, जबकि होने चाहिए थे या तो 12 या तो 6, अगर 2 महीने में एक बार आ रहा है तो. और यहाँ पे आपको उसका वेरिएंस भी दिख जाता है. सो हियर यू कैन सी दैट आपको पीरियोडिक पेमेंट्स एंड रिसीट्स अगर आपको मार्क करना है कि अगर रिपीटेड है, सो दैट यू कैन डू इट. ओके, एस्केप. या ऑडिट कंप्लायंस में चाहिए. Okay. Repeated transaction, similar to periodic payment, is the repeated transaction. कि आपकी एक एक्सपेंसेस कितनी बार आ रही है और क्या वो सेम अमाउंट का है. बहुत बार हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं कि कन्वेंस की एंट्री, प्रिंटिंग मतलब जो कैश पेमेंट की एंट्री है, हम लोग सिमिलर अमाउंट की 500 रुपए की एवरी मंथ पास कर देते हैं, एंड दैट इज वेरी मच ऑब्वियस टू एनी टैक्स अथॉरिटीज. So it is better that we should not be doing that kind of mistake. जो भी एक्चुअल है वो एंट्री करनी चाहिए. But if the auditor wants to find कि सेम लेजर की सेम अमाउंट कितनी बार आ रही है, तो वो यहाँ से देख सकता है. रिपीटेड ट्रांजेक्शंस में जाइए. या So there is a difference between repeated transaction and the periodic. Periodic में आपको 12 बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है. इधर आपको आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे आप देखेंगे 2500 की 24 बार एंट्री आई है. ओके, इट इज नॉट रिपीटेड, इट इज नॉट पीरियोडिक, इट इज रिपीटेड. सेम वैल्यू की, सेम अमाउंट की नंबर. तो इस तरह से आपको हर एक लेजर में कितनी बार वो रिपीटेड ट्रांजेक्शंस आ रहा है ये आइडेंटिफाई हो सकती है, सो दैट ऑडिटर कैन फाइंड द गैप्स एंड एनालाइज कि ये मुझे ऑडिट करना है कि नहीं करना है. ये बेसिक इंटेलिजेंस जो है वो सिस्टम में डाली हुई है टैली ने. ये बहुत लोग हमको पूछते हैं कि टैली में एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और बेसिक इन्वेंट्री के लिए यूज होता है, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं डाली हुई है. बट मेनी पीपल फेल टू रिकॉग्नाइज दैट in the audit features, in the auto bank reconciliation what we showed, in the voucher class what we showed, there is lot of automations that Tally has already provided, but users को मालूम नहीं है, तो वही वो डेबिट और क्रेडिट तरह से यूज करते हैं एंड उस तरह से अपडेट करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे, मतलब ये आप एनालाइज करने के लिए है इसके. ओके, सिमिलर वे में रिलेटिव साइज फैक्टर है. जैसे हमने रिपीटेड ट्रांजैक्शन देखा, एक अमाउंट एक लेजर में कितनी बार आ रही है. रिलेटिव साइज फैक्टर इज नथिंग बट गैप बिटवीन द हाईएस्ट अमाउंट एंड द लोएस्ट अमाउंट. तो टैली खुद बता देता है कि इस लेजर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुई, तो आपका गैप जैसे पूरे साल का वो मिनिमम होना चाहिए. इट शुड नॉट जैसे वेवर नहीं होना चाहिए. तो रिलेटिव साइज फैक्टर दिखा देता है कि किसमें ज्यादा गैप है. तो सब्सक्रिप्शन लेजर में 25 टाइम्स गैप है कि मिनिमम अमाउंट 500 है और मैक्सिमम अमाउंट मे बी जस्ट गो इनसाइड व्हाट इज इट. या सब्सक्रिप्शन दिस. या
सो 350 से लेके 25,000 है. सो द मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट, इसमें अगर हम लोग देखने जाएंगे तो बहुत ज्यादा गैप है. तो इट इज मोर देन 25, अराउंड 25 टाइम्स. तो इससे यूजर्स को मालूम पड़ता है कि लोएस्ट एंड हाईएस्ट क्या है. जैसे नॉर्मल लेजर अकाउंट्स है, कन्वेंस हुआ, पेटी कैश एक्सपेंसेस से रिलेटेड हुए, तो उनमें गैप नहीं होनी चाहिए. ओके, सो दिस फाइंड्स आउट द गैप. ओके, इसके ओके. अभी वी कम टू द वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर. अदर एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बिफोर दैट वी विल जस्ट टेक अ 2 minutes of verification of the vouchers. Go to verification of vouchers हिरल में. Yeah. यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास 1123 वाउचर्स है, और जब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे वाउचर टाइप की लिस्ट आ सकती है. यहाँ पे अगर मुझे चाहिए तो मैं ग्रुप और लेजर वाइज भी देख सकता हूँ, विच इज कॉल्ड एज कंट्रोल V. अगर मुझे देखना है कि कौन से लेजर में कितने वाउचर्स है, अल्ट F1. So normally auditor will either select vouching based on the type of transaction or based on the type of ledger. Tally gives you choice of both. Go to voucher type wise, control V once again. Yes. Yeah, suppose in the sales transaction there are 123 transactions. Now मुझे उनको audit करना है. Audit करने के लिए it is very much necessary and compulsory for the auditor to use a sampling method. Maybe 123 is not a huge number, आप 100% verify कर सकते हैं, but what the audit guideline says that you have to use a sampling method. और इसको स्पेस बार किया तो आपको राइट साइड में बटन आता है शो सैम्पलिंग कॉन्फ़िगरेशन. या सो इधर आपको बहुत सारे चॉइस आते हैं. आपको सैम्पलिंग ऑल वाउचर्स करना है, अमाउंट रेंज बिटवीन टू डिफरेंट रेंज, दैट इज मिनिमम 20,000 से लेके 1 लाख तक का देखना है, बट 20,000 से नीचे नहीं देखना है. बेंफोर्ड एनालिसिस, दिस इज अगेन अ साइंटिफिक ऑडिट मेथड, उसके लिए है. ऑड नंबर्ड, इवन नंबर्ड और स्पेसिफिक वाउचर्स. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को यही पार्टी के सारे वाउचर्स को ऑडिट करना है तो ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड दैट अप्रैल, अगस्त और दिसंबर, ये मेरे को पूरा वेरीफाई करना है. फाइन, यू कैन यूज एनी ऑफ द सैम्पलिंग मेथड. अभी फिलहाल एक कोई भी ले लीजिए, जैसे अमाउंट रेंज ले लीजिए हिरल में. Yeah. मिनिमम अमाउंट मे बी 10,000, 20,000. या मैक्सिमम अमाउंट एंटर, लेट इट बी 2 lakhs. सो सैंपल्ड वाउचर कितने आए? आउट ऑफ 123 92 वाउचर्स आ गए. ओके, अमाउंट रेंज में. इसमें आप जाके एंटर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग योर पेन एंड पेपर. देन यू कैन गो एंड वेरीफाई द ट्रांजैक्शन आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के हिसाब से, एंड यहाँ पे आप स्पेस बार करके फिर से वेरीफाई कर सकते हैं. उसका ऑडिट स्टेटस हमने ऑलरेडी देख लिया है. वाउचर हैविंग मिनिमम 20,000 एंड मैक्सिमम नो लिमिट. यहाँ पे अगर आपने सब कर दिया है, Yeah. So यहाँ पे स्पेस बार करके अगर मैंने सेट मैनुअल सैंपल कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मैन्युअली सैंपल्ड नोटिंग भी आ गया. यस, एंड एंटर कीजिए इसको. Yeah. और एंड यहाँ यहाँ पे पे फिर आप ऑडिट. आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है आपका. ऑडिट कर दिया, आई एम फाइन विथ इट, फाउंड प्रॉपर. ठीक है, कंट्रोल स्पेस एंटर. Alt We F9, will have sorry, to yeah. press Alt F9. Yeah. Audit. Audit Yes. it.
एस्केप एक्सेप्ट करके बाहर No, it's yeah, it's accepted. No, that's it. I'll go to some of the questions what it is. सर क्लाइंट के पास ये फीचर अनेबल नहीं है सर। अशोक राम जी, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको खाली सिक्योरिटी एनेबल करना है, दैट्स इट, नथिंग। टैली में ये इनबिल्ट फीचर है, आपको कुछ भी कस्टमाइज नहीं करना है। If they are same file, can I use this feature? Yes, you can still use this feature. खाली balances का जो verification है उसका कोई मतलब नहीं है, because the data is continued, जो उज्जवल ने पूछा है। ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन, वेरी गुड बैलेंस। आप विवेक भाई बोल रहे हैं कि भाई फिर से रिपीट कीजिए। सर मैं 2 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ। ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन, इफ द टाइम परमिट्स एट द एंड वी विल टेक अप वंस अगेन। इसका डॉक्यूमेंट एक शेयर कर सकते हैं। I'll close this company and reopen. Yeah. Shruti is saying very good feature introduced. Shruti, to tell you very frankly, this is there for years together. Yes, it was not there for the normal Tele multi-user or a single user. It has been enabled maybe around 2 or 3 years back, but still 3 years, 4 years period, it is there. A lot of accountants are not aware or auditors are not aware of it. So इसीलिए ये चीज है। Vivek bhai, opening balance verification, we will be sharing the video. You can go through the video completely together. But आज के जैसे टॉपिक हिरल भाई ने बताया है, around 8 different topics हमको कवर करना है, and we are slightly running late because एक जो important टॉपिक मुझे कवर करना है, ये अभी ऑडिट हो गया है, आपको सैम्पलिंग मेथड बता दिया, सैम्पलिंग मेथड के बाद में वेरीफाई कर दिया है। द सेम वे अभी मैं एक दूसरा उसमें बताने वाला हूँ। ओके, रिपीटेड ट्रांजैक्शंस ये पूरा कवर कर चुके हैं हम लोग। एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑडिटिंग ट्रांजैक्शन में सैम्पलिंग मेथड में है। Hello, ma'am. Please repeat the design. Yes, sir. Start किया. Hello. Hello. Yes, ma'am. Hello. Puneet sir.
Hello. Yeah, please. Sorry. Yes, sir. Yeah, please go ahead, Dilbert. Yeah. So I have loaded this company. Yeah, you wanted to show that external confirmation, right? Yeah, external confirmation. Yeah. नहीं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के पहले हम लोग को पहले ये दिखाना था एमएसएमई ट्रांजैक्शंस को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं एंड यहाँ पे लिस्ट आउट करते हैं। सो देखने जाए जैसे हमने रिपीटेड ट्रांजैक्शंस पीरियोडिक पेमेंट के ट्रांजैक्शंस को अनेबल किया था ना, द सेम वे एमएसएमई ट्रांजैक्शंस एंटर। Yes, sir. 1 second. ऑल आइटम्स करते हैं। सो यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं एस्केप थोड़ा सा स्लो, एस्केप करो, एस्केप। यहाँ पे एमएसएमई ट्रांजैक्शंस पे जाने के बाद में ये गो टू कंट्रोल F9। Should I load this previous year company also? नहीं, नॉट नेसेसरी, ये साल का ही देख रहे हैं ना। Yeah, okay. या माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंटर। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी कंपनी जिसपे एमएसएमई है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी एमएसएमई को विद इन 45 डेज पेमेंट करना है, आपको उसके ट्रांजैक्शंस लिस्ट आउट करना है सेपरेटली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट उसके पेमेंट्स लेट ना हो। एट द सेम टाइम जो उसकी डिटेल्स है, एंटरप्राइज टाइप, रजिस्ट्रेशन नंबर्स आप अपने मास्टर में रख सकते हैं। ये कैसे रख सकते हैं? ये यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कीजिए, अक्षय ट्रस्ट एंड F5 अपडेट। सो बताना है मीडियम है, स्मॉल है, और उसका उद्योग आधार नंबर या जो भी आपको डिटेल्स अपडेट करना है यहाँ पे अपडेट करना है। सेम वे में जैसा हमने ये एमएसएमई आइडेंटिफाई किया है, हाँ स्किप करें। Yeah. सो नाउ अभी जैसे हमने आइडेंटिफाई कर दिया, तो एमएसएमई के जो टोटल एक ही कंपनी है, एंटर करो, नीचे 1। Yeah. तो उसका ट्रांजैक्शन ये है, उसकी लिस्टिंग आ जाएगी, ऑडिटेड वाउचर्स कितना उसका, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस। सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हिच आर द एमएसएमई मास्टर्स। दिस इज द सेम वे, द सिमिलर functionality we can use it for the related party transactions as well. I will not go into the detail of the same because it is the similar mechanism. Okay, so let's move forward in the other analysis. Audit analysis, other analysis. इधर काफी सारी चीजें हैं। अगेन ये जो डैशबोर्ड में जैसे इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, फिक्स्ड एसेट एनालिसिस, ट्रांजैक्शंस ऑन हॉलीडेज, हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू ट्रांजैक्शन, देयर आर मेनी, these all are beautiful feature, but the one which attracts my attention is this external confirmation. The audit process requires us to confirm with each party के भाई हमारे बुक्स में आपका क्लोजिंग बैलेंस ये है, is it the same with your books? Do let me know. इसमें आपको एज एन ऑडिटर व्हाट यू कैन डू इज दैट आइडेंटिफाई कि ये मेरे टोटल लेजर्स है। ओके, यहाँ पे जैसे इसमें अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स ही दिख रहा है। अगर मुझे लोन अकाउंट्स भी करना है, उनके भी कंफर्मेशन चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल F4 ग्रुप बटन यूज करूंगा, F4 ग्रुप। तो यहाँ पे आ रहा है सन्ड्री डेटर्स, एंटर, क्रेडिटर्स, लोन अकाउंट्स, लोन सिलेक्ट कीजिए, बैंक अकाउंट सिलेक्ट कीजिए, मुझे बैंक से भी कंफर्मेशन लेना है। ओके, कंट्रोल एंटर। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे आपका बैंक अकाउंट्स भी आ गया, लोन अकाउंट्स भी आ गया। F12 में ऑप्शन है उसका ग्रुप नेम देख के साथ में F12 कीजिए, शो ग्रुप नेम, शो नेम ऑफ द ग्रुप। ओके, अभी आपको इधर मालूम पड़ रहा है ऑल इंडिया इज अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, और उसका मेरी बुक्स में 20,000 बैलेंस है। मुझे उसे कंफर्मेशन भेजना है कि भाई इन माय बुक्स दिस इज योर बैलेंस। तो स्पेस बार
एंड सेम वे में मेरे को और 3-4 लेजर्स को आप स्पेस बार कीजिए। Yeah. Yes. Mark for confirmation. यहाँ पे राइट साइड में ये सीरियल बाय F6 मार्क फॉर कंफर्मेशन, और Yeah. वो मार्किंग हो गए। यहाँ से मार्क करने के बाद में एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑडिटर को जो अकाउंटेंट है उनको एक सेपरेट रिपोर्ट दिया हुआ है जहां से वो प्रिंट आउट करेंगे। एस्केप करो, बाहर जाइए, Yes. गेटवे ऑफ टैली पे आइए, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे ऑडिट एंड कंप्लायंस इन्फो मेनू है, उसमें जाइए, स्टैट्यूटरी ऑडिट इन्फो, यस। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन करके टैब है, तो यहाँ पे आप एंटर कीजिए, और यहाँ पे जो अक्षय ट्रस्ट, ऑल इंडिया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये जहाँ पे आपने क्लिक किया था, यहाँ पे आप स्पेस बार करके इनको सबको एक साथ में प्रिंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अल्ट पी बटन है ऊपर। Yes. हाँ, अभी इसमें जैसे आप ये ऑप्शन डाल सकते हैं कि हमारे ऑडिटर कौन है, नो करो, प्रिंट नो करो। यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रिंट कंफर्मेशन लेटर, आपको कंफर्मेशन लेटर चाहिए, यस या नो, यस सपोज हमको कंफर्मेशन लेटर चाहिए, एंटर। डू यू वांट टू प्रिंट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आल्सो, मतलब पूरा लेजर अकाउंट का प्रिंट भी करना है, यस करना है, ओके। आपके ऑडिटर का नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ओके, एंटर, एंटर। ईमेल अकाउंट डाल दीजिए abc@raghuram.com, यस कीजिए। हाँ, सी और ऑडिटर, ओके, अक्षय टू अक्षय ट्रस्ट, उसका एड्रेस वगैरह टैली में नहीं डाला था उन्होंने, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था डालना जरूरी है। ये प्रॉम्प्ट अटेंशन, योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू बी रिक्वेस्टेड, इस तरह से बैलेंस रिसीवेबल इन दिस ऐसा करके आपका प्रिंट आ जाएगा। एस्केप कीजिए और सेकंड पेज पे जाइए, One वहीं second. पे सेकंड प्रिंट पे, Yes. Yes. हाँ देखिए आपको लेजर व्यू के साथ में आ जाता है, आप दोनों साथ में प्रिंट कर सकते हैं। एस्केप, एस्केप, यस। सो सिमिलरली आप सबका एक एक करके आप प्रिंट कर सकते हैं, सबका साथ में भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है कि क्या हम सबको साथ में मेल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा हमने टैली में ऑलरेडी बोला है कि भाई इसको मेलिंग के लिए भी अलाउ करो, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट सी कि वो मेलिंग के लिए अलाउड है। आपको इंडिविजुअली आपको यूज कर सकते हैं। कल हमने बताया था टैली में कि हमको एक एक मेल करना है तो कैसे करना है, तो इसमें एकदम सिंपल सा सिस्टम है। मेलिंग कॉन्फ़िगर करने में बहुत टाइम जाता है, बट एक आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी रिपोर्ट है या ये जो आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिपोर्ट है, कोई भी एक रिपोर्ट में जाइए, Yeah. सपोज आपको यही मेल करना है, तो आप कैसे करेंगे, अल्ट एम करके बटन है, यहाँ पे आपको जीमेल की बेसिक डिटेल्स अपडेट करनी, यूजर आईडी, पासवर्ड, और इस तरह से आपका पूरा अपडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये मेलिंग आप कॉन्फ़िगर करके भेज सकते हैं। तो ये आप सिंगल ईमेल इनवॉइस की भी जा सकती है, लेजर वाउचर रिपोर्ट की भी जा सकती है, और एनी ऑफ द रिपोर्ट्स व्हिच आर देयर इन टैली, उस तरह से जा सकता है। ओके, अभी हम लोगों को ऐसी एक रिक्वायरमेंट आया था जहां पे हम लोगों को पूछा गया कि भाई मल्टीपल कस्टमर्स को साथ में कैसे हम लोग ईमेल कर सकते हैं। हिरोल भाई, डू वी हैव अ Yes, सॉल्यूशन sir. फॉर दैट? Yeah, definitely.
So I'll go to company called Shah Traders. Now in this हम लोग TDL एक enable कर सकते हैं. ना यहाँ पे आपको एक ये कस्टमाइज रिपोर्ट है एक्चुअली. इस रिपोर्ट में बेसिकली हम लोग गेटवे ऑफ मेल पे जाएंगे एंड सेंड मेल लेजर रिपोर्ट पे जाएंगे. सन्ड्री डेटर्स में सपोज सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी. ये पर्टिकुलर लेजर का अगर मुझे मेल भेजना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके F7 करूंगा तो ऑटोमेटिक उसको मेल चले जाएगा दिस वे. तो ये इवन मैं मल्टीपल सिलेक्ट भी कर सकता हूँ साथ में. तो ये अगर मैंने मल्टीपल सिलेक्ट किया हुआ है और जिसमें ईमेल आईडी दिया ऑलरेडी मेंशन्ड है तो मैं ऑटोमेटिक यहाँ से मैं मेल कर सकता हूँ दिस वे. एंड इवन आउटस्टैंडिंग मेल करना है तो हम लोग आउटस्टैंडिंग भी मेल कर सकते हैं. सेंड मेल आउटस्टैंडिंग में एक साथ जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबका पार्टी का डिटेल्स यहाँ पे ईमेल आईडीज होगा. वो ईमेल आईडी पे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया अकॉर्डिंगली. सुकन्या एंटरप्राइज में कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आई विल फर्स्ट गो एंड पुट द ईमेल आईडी एंड देन आई कैन मेल डायरेक्टली फ्रॉम हियर. यहाँ पे F7 में एक ऑप्शन बटन दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली मेल कर सकते हैं. Yes, sir. Sir, should I move ahead then? Cost center. एक बेसिक एक दो शॉर्टकट और बता देते हैं. ऑडिटिंग के लिए है ना. या प्लीज कम टू टैली. ऑडिटिंग के लिए देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो बहुत लोग मिस्टेक कर लेते हैं. वो हाँ एक कंपनी बन रही है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन. तो टैली में जैसे आप नॉर्मल स्टॉक समरी से आपका स्टॉक वैल्यूएशन आता है. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर आप खुद का वैल्यूएशन भी डालना है तो वो आप अपडेट कर सकते हैं. कैसे आप डाल सकते हैं? वी विल जस्ट लर्न इट इन अ मिनट. गो टू F11. अभी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाइए. सॉरी, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाइए. यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आ रही है, दे बोथ आर सेपरेट. ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू. एंड ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है, एंटर करेंगे तो स्टॉक समरी में लेके जाता है. 64 lakhs इज अवर स्टॉक समरी. बट बहुत बार ऐसा होता है, जैसे ऑडिटर्स ने बताया या आपके वर्किंग करने के बाद में, the stock of tally is not telling with the stock which you want to report it to the government. Okay, how do you ensure that आप आपकी खुद की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं? Of course, it is not possible to individually update for each stock item, but on an overall basis, it is possible. We will show you in brief how is it possible. Go to F11. यहाँ पे ऑप्शन आया है, सेकेंड ऑप्शन, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री. अगर आप इसको नो कर देते हैं, आपने यस किया हुआ है इसीलिए ये आपके स्टॉक समरी में लेके गया. अगर हम लोग इसको नो कर देते हैं तो क्या इंपैक्ट आता है? लेट अस अंडरस्टैंड. कंट्रोल A. ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का फिगर निकल गया. अरे अभी हमको डालना होगा तो कैसे डालेंगे? ओके, एस्केप कीजिए. दैट मीन्स आपने टैली को बताया मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो मुझे खुद को एनेबल मैन्युअली एंटर करनी है. अकाउंट्स इन्फो, क्रिएट, लेजर क्रिएट, स्टॉक इन हैंड. ओके, स्टॉक इन हैंड है तो उसको अल्टर कीजिए. सॉरी. हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस एक बार नॉमिनल कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, मे बी 15 lakhs.
डेट चेंज करनी पड़ेगी एज ऑफ 31 मार्च 12। या कंट्रोल ए। बस अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिर से जाके देखिए, अल्ट F1। यस, सो ओपनिंग वैल्यू एंड क्लोजिंग वैल्यू दोनों आपके हिसाब से आ गई। तो ये जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो हमको बहुत बार ये क्वेश्चन आता है यार हम लोग हमारी खुद की वैल्यूएशन कैसे डाल सकते हैं। दिस वाज वन फीचर व्हिच आई थॉट नॉट मेनी यूजर्स वुड बी अवेयर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे एक और एक ऑप्शन आता है जो डिफॉल्ट ऑडिट एंड कंप्लायंस मेन्यू में नहीं है, बट फिर भी आपको अगर देखना है तो गो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने ऑडिट एनालिसिस मेन्यू में देखा जब हम लास्ट ईयर से कंपेयर करके कैसे कर सकते हैं, बट हाउ अबाउट कंपेयरिंग द करंट ईयर, मैं ट्रेंड कैसे चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन है विच इज कॉल्ड ऑल्ट एंड, शॉर्टकट कीज मैं आज ही थोड़ा सा ले रहा हूँ, तो ऑल्ट एंड शॉर्टकट कीज लिया, ऑटो कॉलम, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ मंथली। या शो टोटल कॉलम, यस अगर देखना है तो। वंडरफुल, आपका कौन से मंथ में कितना एक्सपेंस है पूरा आपको कच्चा चिट्टा ट्रेंड आपको टैली में यहीं से मिलता है। इफ यू सी इट इज अ वंडरफुल डैशबोर्ड। ये आप सेल्स के लिए ट्रैक कर सकते हैं, ये आप एक्सपेंसेस के लिए ट्रैक कर सकते हैं, आप जहां पे भी ट्रायल बैलेंस में रिपोर्ट है तो आप वहां पे आप डेटर्स को ट्रैक कर सकते हैं। कहीं पे मल्टीपल प्लेसेस यू कैन सी दिस ऑल्ट एंड फीचर, और एवरी मंथ में क्या आपका क्लोजिंग बैलेंस रहा है। सो इफ यू सी that selling and distribution expenses was there in the month of in yes. this May month, के April बाद and में May, आपको मंथ में है ही नहीं एक्सपेंसेस, सीधा आपका इस दिन। ऐसा क्यों? October। आपको अगर पूरे साल में काम किया है तो मंथली आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए। सो द अकाउंटेंट हैज नॉट डन हिज जॉब प्रॉपर्ली। आई थॉट दैट ऑडिट के लिए ये पर्टिकुलर फीचर मालूम होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई आई हैव कवर्ड दिस फीचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपको चाहिए, आप अल्ट एंड फीचर से देख सकते हैं। राइट हिरल भाई, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके सर। How did you like this feature? Please inform in the question mark. So next we will go to the cost center and its reporting. Now what is cost center? Cost center means you can आप cost center किसको रख सकते हैं? Maybe आप डिपार्टमेंट को cost center रखिए, या तो एक से डिवीजन है, या तो एक पर्सनल है, सेल्समैन को आप cost center रख सकते हैं, या फिर ऐसे डिफरेंट सिनेरियोज है। यस सर। सेल्समैन से याद आया, हमने फर्स्ट डे एक एग्जांपल दिया था, कौन सा? अच्छा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट सर। यस, तो उसमें हमने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो दो जन काम करते हैं ना, अपने नटू भाई और बागा। कैन वी सी कि दोनों का परफॉर्मेंस कैसा रहा था? सो पीपल विल बी एबल टू रिलेट कॉस्ट सेंटर कैसे एक्टिवेट करना है, कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट कैसे देखनी है। तो कौन ज्यादा एक्टिव था गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, नटू भाई या बागा? या डेफिनेटली। तो ये कॉस्ट सेंटर या नहीं, मैंने एडिट किया हुआ है सर। अच्छा ठीक है। या सो इन ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने नाम एक्चुअली चेंज कर दिया है, शार्ट एडर्स। इसमें अगर हमें रिपोर्टिंग में देखना है कि जो नटू काका और बागा है उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया, तो हम लोग किस ये रिपोर्ट में जा सकते हैं। डिस्प्ले में गेटवे ऑफ टैली पे मैं डिस्प्ले सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन मैं जा रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एंड देन कॉस्ट सेंटर, एंड देन कैटेगरी समरी। नाउ ये कैटेगरी समरी में मुझे मेरे सेल्समैन दिख रहे हैं कि किसने ज्यादा परफॉर्म किया है, उसका क्रेडिट कितना है, अमाउंट। सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि बागा ने ऑलमोस्ट 3,81,000 का सेल्स किया था, नटू काका ने 647 का किया था, एंड रमेश कुमार ने 6,14,000 का किया था। सो अकॉर्डिंगली आई कैन जज कि ये जब मैं इसमें एंटर करूंगा बागा में, तो आई कैन गो टू द ट्रांजैक्शंस कि वो पर्टिकुलर सेल्स कौन से सेल्स में उसको कितना कितना अलोकेट हुआ है। तो ये सेल उसको अलोकेट हुआ है, देन ये सेल्स में उसको अलोकेट किया हुआ है ना। अलोकेशन कैसे करते हैं, मैं पर्टिकुलर सेल इनवॉइस में जाता हूँ,
आइदर हम लोग वाउचर क्लास से अलोकेट कर सकते हैं, या फिर सपोज मैं ये एज वाउचर क्रिएट करता हूँ, तो जब ये मैं एज वाउचर क्लिक करूंगा, कंट्रोल वी, ये पहले ये जो था मेरा इनवॉइस मोड है, अगर मैं एज वाउचर करूंगा कंट्रोल वी, तो आई विल गो टू दिस स्क्रीन। नाउ ये स्क्रीन में आप हिरल भाई, यहाँ पे Yes, sir. आप एक नया इनवॉइस जनरेट एलोकेट करके दिखाइए ना विदाउट वाउचर क्लास। या डेफिनेटली मैं एक नया इनवॉइस यूजर विल नॉट यूज द वाउचर मोड, वो वाउचर क्लास वाउचर सेल्स एंट्री करेंगे ना, तो एक नया Correct, sir, एंट्री yeah. करके दिखा दीजिए कि एक सेल एंट्री Definitely. करता है, तो नकू काका आप इनको कितना एलोकेट कर सकते हैं, कैसे एलोकेट कर सकते हैं, राइट कॉमन लेजर को नो। या सो मैं यहाँ पे सेल्स यहाँ पे वाउचर टाइप जो है मैंने सेल्स लिया है। नाउ ये सेल्स में यहाँ पे मैं सेल्स न्यू दूसरा वाउचर टाइप ले रहा हूँ, सेल्स न्यू। नाउ इन दिस केस एज वाउचर मैं सिलेक्ट करूंगा इसको। इनवॉइस मोड वाउचर में मोड कीजिए, में हम इनवॉइस मोड में कीजिए प्लीज। या आइटम इनवॉइस, हाँ सेल्स लेजर को नो कर दीजिए, F12 में कॉमन लेजर को नो कर दीजिए। या इन दिस यहाँ पे मैं F12 में कॉमन लेजर अलोकेशंस में नो कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया से जगत नारायण ट्रेडर्स है, ये एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। देन प्राइस लेवल में नहीं ले रहा हूँ, सपोज मैं इलेक्ट्रोलक्स ये एसी जो आइटम था यहाँ पे से ये 1 पीस और एल्स 2 पीसेस। नाउ इन दिस केस यहाँ पे सेल्स जब मैं एंटर करता हूँ, तब उसके बाद में यहाँ पे मुझे ऑप्शन पूछेगा कि कौन सा कॉस्ट कैटेगरी कौन सा सिलेक्ट करूँ। अगर मेरे पास मोर देन 1 कॉस्ट कैटेगरी है तो आई कैन सिलेक्ट एनी 1 कॉस्ट कैटेगरी। सपोज मेरा सेल्समैन है यहाँ पे, और सेल्समैन में से मुझे इसको किसको अलोकेट करना है, ये कौन सेल लेके आया था, या तो ये डील किसने क्लोज की थी। तो सपोज ये बागा ने क्लोज की, तो मैं यहाँ पे उसका नाम सिलेक्ट कर दिया। और एल्स हम लोग सिमिलरली ये प्रोपोर्शनेटली भी कर सकते हैं। सपोज ये मैंने फुल अलोकेट किया, या तो सपोज मुझे इसको हाफ हाफ अलोकेट करना है कि दोनों बागा और नटू काका का दोनों का इसमें रोल था, तो 25,000 बागा को दिया एंड प्रोपोर्शनेटली 21,800 से नटू काका को इनको दिया। फाइनली मेरा जो टोटल है 46,800 वो मेरा वाउचर से टैली होना चाहिए दिस वे। देन आई विल टाइप IGST एंड मैं ये एंट्री सेव कर दूंगा। ये मैंने एंट्री सेव कर दी ना। हम लोग फिर से ये रिपोर्ट में जाएंगे एंड देखेंगे 21 सितंबर का जो रिपोर्ट है उसमें वो किस तरह से दिख रहा है। सो आई विल क्विकली गो टू डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, देन कॉस्ट सेंटर कैटेगरी समरी। नाउ यू कैन सी हियर बागा के अकाउंट में इन द मंथ ऑफ सितंबर यहाँ पे 25,000 अलोकेट हो गया, बिकॉज मैंने उसको प्रोपोर्शनेटली अलोकेट किया हुआ दिस वे। सो सिमिलरली आप डिफरेंट वे में देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप है, अगर मुझे सिर्फ पर्टिकुलर बागा का ही देखना है तो मैं बागा को कितना सेल हुआ था एंड अकॉर्डिंगली सिमिलरली मैंने अगर एक्सपेंसेस में भी उसको अलोकेशन दिया है तो मुझे उसका प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगा कि ये सेल तो इतना लेके आया था डेफिनेटली, लेकिन एक्सपेंसेस कितना लेके आया, एक्सपेंसेस में उसका प्रोपोर्शन क्या है, तो वो फाइनली मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना प्रॉफिटेबल है, तो वो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। सिमिलरली लेजर ब्रेकअप है, एक पर्टिकुलर लेजर है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट का कॉस्ट सेंटर समरी कितना है, और एल्स आई कैन सी द ग्रुप ब्रेकअप। ग्रुप ब्रेकअप मतलब सपोज यस सर ये एक रिक्वेस्ट आया है कि आपने तो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, आप क्रिएट कैसे करेंगे, नया सेल्समैन ज्वाइन हुआ है तो उसको कैसे करेंगे, उसका कॉस्ट सेंटर स्टार्टिंग से एक थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए ताकि एक लोगों को क्लैरिटी आवे कि क्या क्या स्टेप्स किए कॉस्ट सेंटर क्रिएशन में। ओके
सो एक्चुअली मैं यही स्टेप से जाने वाला था, हाँ, please. enable cost center से स्टार्ट होने वाला था. Yeah, so I'll go to F11 first. इसका enable कैसे करना है? F11 में अकाउंटिंग फीचर्स, एंड इन अकाउंटिंग फीचर्स यहाँ पे एक ऑप्शन है मेंटेन कॉस्ट सेंटर. ये ऑलरेडी मैंने एनेबल कर दिया है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर दिस ये स्पेस में, एंड मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी. अगर मोर देन वन कॉस्ट कैटेगरी मेंटेन करना है तो दिस सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन ये दोनों यस करना है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर एंड मेंटेन कॉस्ट कैटेगरी. सो ये एनेबल करने के बाद में हम लोग फिर से मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे टैली में. नाउ इन अकाउंट्स इन्फो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि कॉस्ट सेंटर करके एक कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर ये दोनों बाइफिकेशन आ गया है. तो कॉस्ट कैटेगरी मींस मैं ऑल्टर में जा रहा हूँ, हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं. तो ये मैंने सेल्समैन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है. सिमिलरली मैं अगर क्रिएट में जाऊंगा तो आई विल गेट एन ऑप्शन टू क्रिएट अनदर. से मेरा डिविजन है या डिपार्टमेंट है. आई एम क्विकली क्रिएटिंग allocate revenue items and allocate non revenue items. इसमें कौन सा allocate करना है वो हम yes करेंगे. अगर दोनों non revenue items भी allocate करना है जैसे fixed asset हुआ तो वो इसके लिए फिर ये भी yes करना पड़ेगा, और else सिर्फ revenue items ही enable करेंगे हम लोग. ये मेरा डिपार्टमेंट हुआ. नाउ कॉस्ट सेंटर अगर मुझे क्रिएट करना है तो आई विल क्रिएट अ कॉस्ट सेंटर. यहाँ पे मैं सपोज मैं आई एम सिलेक्टिंग द कैटेगरी डिपार्टमेंट, तो से सेल्स डिपार्टमेंट हुआ एंड वन मोर डिपार्टमेंट से अकाउंट्स डिपार्टमेंट हुआ. दिस वे यू कैन क्रिएट द डिपार्टमेंट्स एंड आप मोर देन वन कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो आपके अकाउंट आपके ट्रांजैक्शंस में. सो यू कैन सी हियर जैसे कि मैंने सेल्समैन यहाँ पे सेल्समैन किए थे सिलेक्ट, वैसे ही मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट आ गया. सेल्समैन एंड ये डिपार्टमेंट्स आ गया दिस वे. सो वी सॉ द एनेबलिंग ऑफ द कॉस्ट सेंटर, हाउ टू अलोकेट इट इन द इनवॉइस, एंड कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स हमने देखा. एंड इसी के साथ में आई विल शो यू द कस्टमाइजेशन जो हमने ये क्रिएट किया था. बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दिस, सो मैं अभी कवर कर लेता हूँ सो दैट यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इसका लिंक क्या है. सो नाउ इन दिस कॉस्ट ये पर्टिकुलर इसमें कॉस्ट सेंटर P&L में जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि ये मेरे सारे कॉस्ट सेंटर का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आ गया. तो ये जो प्रोजेक्ट 1 शो 1 है ये मेरा एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर है. नाउ ये मेरा रेवेन्यू कितना हुआ था ये पर्टिकुलर शो में, मुझे रेवेन्यू कितना आया था, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना था, एंड इनडायरेक्ट इनकम में मेरा प्रोफेशनल इनकम जो है इनडायरेक्ट इनकम है तो उसमें कितना प्रोपोर्शन है. ये फाइनली वो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कितना प्रॉफिटेबल था ये शो. वैसे ही प्रोजेक्ट 1 के अंदर मेरे दो शो थे, शो 1 एंड शो 2. तो प्रोजेक्ट 1 में ये शो 1 मेरा थोड़ा कम प्रॉफिटेबल था, एंड 120 शो 2 में 1,23,000 मुझे प्रॉफिट हुआ है. सिमिलरली शो 2 में मुझे लॉस हुआ है 5,000 का. सो आई कैन ये जो शो 1 है प्रोजेक्ट 2 का उसमें मुझे 5,000 लॉस हुआ है. सो आई विल अंडरस्टैंड कि ये प्रॉफिटेबल नहीं था एंड आई कैन अवॉइड दिस पर्टिकुलर थिंग इन फ्यूचर. सो दिस वे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं. Super. Hiral bhai, there are a few more things. Interest calculation और manufacturing cycle भी करना है. So let's move. एक interest calculation, although it's a very complex subject, but if you can just show it in a very crisp manner, so that we can devote more time for the manufacturing setup part. Yes, sir. So for interest calculation, I will select the same company. एंड इन दिस इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेशन कैसे करना है मैं क्विकली जाता हूँ F11 में. देन अकाउंटिंग फीचर्स, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन. F11 में F1 एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड यूज एडवांस पैरामीटर्स, ये मैंने एनेबल किया. नाउ सेकेंडली देन आई विल गो टू अकाउंट्स इन्फो.
ledger, and then I will alter a particular, say जगत नारायण ट्रेडर्स है, उसको मैंने ऑल्टर किया. ये पर्टिकुलर डेटर्स में मैंने इसको डेटर हो या क्रेडिटर हो जिसमें आपको इंटरेस्ट पैरामीटर्स रखना है, तो यहाँ पे आपको एक लास्ट में ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस. सो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस किया, एंड देन यहाँ पे ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सकता है. देन ये पैरामीटर्स है, ओवरराइड पैरामीटर्स, लाइक अगर मुझे एक पर्टिकुलर एंट्री में ओवरराइड एवरी एंट्री में मुझे डिफरेंट पैरामीटर्स रखना है, तो मैं यहाँ पे यस कर सकता हूँ. देन फॉर अमाउंट्स एडेड और डिडक्टेड, यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट जो होता है वो ट्रांजैक्शन डेट मुझे अगर इंक्लूड करना है फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो मैं ये यहाँ पे यस करूंगा. अदरवाइज अगर ये नो होगा तो दैट मीन्स जो जिस दिन पे ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन का इंटरेस्ट वो कैलकुलेट नहीं करेगा, उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेगा. देन यहाँ पे सिंपल मैंने 15% रेट ले लिया, एंड इंटरेस्ट स्टाइल यहाँ पे 4 में से मैंने कैलेंडर ईयर सिलेक्ट किया है. देन ऑन ऑल बैलेंसेस एप्लीकेबिलिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑलवेज या पास्ट ड्यू डेट, एंड ये पैरामीटर्स है आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सिलेक्ट करना है. तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और रेफरेंस. ठीक है, ये एक सिंपल पैरामीटर था इतना. ना अभी मैं आपको एक क्विकली जाके दिखाऊंगा. मैं मेन स्क्रीन पे आ गया हूँ फिर से, एंड देन आई विल गो टू डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एंड देन आई विल गो टू इंटरेस्ट कैलकुलेशंस. नाउ ये इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट पेएबल, आई विल गो टू इंटरेस्ट रिसीवेबल. I will drill down quickly current assets के अंदर sundry debtors and उसके अंदर कर्नाटका customers. Now ये particular ये कोई भी एक particular इसमें जाऊंगा, say जगत नारायण ट्रेडर्स है. ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको ये जो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखेगा मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है फर्स्ट इनवॉइस पे. तो इसको अल्ट F1 करूंगा, डिटेल में देखूंगा ना. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन था वो 30 डेज मेरा ड्यू डेट, मैंने क्रेडिट पीरियड दिया है 30 डेज. सो फ्रॉम 12 अप्रैल इसने कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट किया, 12 मई से स्टार्ट कर रहा है वो, एंड टिल 29 मई. बाय 29 मई बिकॉज ये ऑलरेडी पे हो चुका है, मतलब 29 मई को ऑलरेडी पे हो चुका था, तो इसके लिए इसने 12 मई से 29 मई का ट्रांजेक्शन लिया हुआ है, वो डेट लिया हुआ है. तो 18 डेज हुआ, 12th में से 29th में 18 डेज एंड 15%, सो द अमाउंट इज 403. तो आप यहाँ पे रीचेक कर सकते हैं 54,720 पे इस तरह से. एंड ये जो बैलेंस है लास्ट वन वो मेरा पेंडिंग बैलेंस है, तो इसके लिए 7 सितंबर से मींस 8 अगस्त 2019 वाज माय ट्रांजैक्शन डेट. सो वहां से 7 सितंबर आया बिकॉज ड्यू जो क्रेडिट डेज था 30 डेज. सो फ्रॉम 7 सितंबर से मेरा इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होगा एंड टिल डेट मतलब 21 सितंबर तक मैं इसका इंटरेस्ट चार्ज करूंगा बिकॉज अभी तक मुझे इसका पेमेंट नहीं आया है. सो दिस पे ही मेरा इंटरेस्ट टोटल होता है 1189. एंड इसका अगर मुझे इंटरेस्ट का एंट्री पास करना है तो मैं वाउचर टाइप में एंट्री इसका पोस्ट वाउचर टाइप में आई विल गो अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप ऑल्टर एंड आई विल गो टू डेबिट नोट बिकॉज ये जो भी इंटरेस्ट का सेटिंग होगा वो मुझे इसमें डेबिट नोट में करना होगा. तो डेबिट नोट के अंदर वाउचर टाइप में मैं एक नया क्लास क्रिएट करूंगा. आई विल टाइप योर सिंपल इंटरेस्ट. मैं सिंपल इंटरेस्ट का ही बता रहा हूँ सिर्फ अभी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज सिमिलर थिंग. सो यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग यस किया एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने नो रखा है, सेव कर दिया. एंड देन आई विल गो बैक, आई विल गो टू अकाउंटिंग वाउचर, I will go to debit note. I will select the voucher class. I will select simple interest. ठीक है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, एंड आई विल सिलेक्ट जगत नारायण ट्रेडर्स. ना यहाँ पे मुझे दिखाएगा कौन से इंटरेस्ट बाकी है, तो किसका मुझे अकाउंटिंग करना है. मैंने सिलेक्ट किया रैंडमली, आई एम सिलेक्टिंग दीज टू. ये नीचे वाला जो इनवॉइसेस है उसका पेमेंट नहीं आया है सपोज. सो कंट्रोल A this and new reference to, and then I will select interest received account or interest receivable, whichever you want to charge it to. This will be my income account. So this will be my interest debit note. इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमने देखा, और इंटरेस्ट हमने कैसे पोस्ट किया.
इसका इनवॉइस कैसे बनाना है, डेबिट नोट कैसे रेज करना है, वो हमने देखा. So this was all about the interest calculation. In a very crisp way आपने बताया इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे अपडेट होता है. Fantastic. Yes, sir. Let's move to the next topic. Yeah, sir. So audit, we will see quickly the customizations. I have already covered the emailing and cost center. So I will quickly show you the audit trail customization in paperless office. So what exactly is the audit trail? I will select a company. So for audit trail, I will go to display. I will go to statement of accounts, tally audit, and then I will go to voucher types. Now audit trail का मतलब क्या है? हम audit trail में exactly क्या होता है कि मैंने कौन से suppose I am going to this particular, I am going to this sales ledger, sales voucher type. Now ये sales voucher type में मैं January में जाता हूँ. Now January में आप यहाँ पे देख सकते हैं, although it is very minute, but जो आप desktop के screen पे देखेंगे तो it will be visible to you. मोबाइल स्क्रीन पे ज्यादा विजिबल नहीं होगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू. जो लाटी इंटरनेशनल ये दो ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं आप, तो इसमें एग्जैक्टली पहले एंट्री किसने किया था? तो यूजर पी ने एंट्री किया था ऑन 8 फरवरी 2018. देन उसने क्या क्या एंट्री किया था? डेबिट था 20,000 टू लाटी इंटरनेशनल, क्रेडिट था टू सेल्स, एंड सो ऑन. एंड देन उसके बाद में फिर से मिस्टर पी ने फिर से जाके ऑल्टर किया, वो 20,000 अमाउंट का 25,000 कर दिया. ठीक है. एंड देन उसके बाद में मिस्टर बी केम एंड देन ऑल्टर्ड दैट ट्रांजैक्शन एंड मेड इट 2,50,000 इंस्टेड ऑफ 25,000, उसने 2,50,000 कर दिया. सो नॉर्मली हम लोग जब एंट्री करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि ये एंट्री एक्चुअली एडिट किसने किया था. तो ये ऑडिट ट्रेल में हमें ये पता चलेगा कि एंट्री एडिट किसने किया है, किसने उसे ऑल्टर किया है, किसने क्रिएट किया है, और क्या एग्जैक्टली उसने चेंजेस किए हैं वो एंट्री में. सो हम यहाँ पे उसको कैच होल्ड कर सकते हैं. वी कैन सेट हिम अकाउंटेबल कि ये एग्जैक्टली क्यों हुआ था. सो ये सिमिलरली हम लोग वाउचर टाइप वाइज डिफरेंट वाउचर टाइप वाइज हम लोग चेक कर सकते हैं रिसीट्स में, या डिफरेंट जो भी वाउचर टाइप में हमें चेक करना है, या वो पर्टिकुलर डेट के एंट्री देखने हैं, तो वो अकॉर्डिंगली हम लोग पीरियड चेंज करके देख सकते हैं. उसके लिए आपको फर्स्ट ऑडिट, आपका जो एडमिन, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, पुनीत सर ने आपको स्टार्ट में बताया कि एडमिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है एंड सिक्योरिटी लेवल्स क्रिएट करने हैं. तो वो सिक्योरिटी हम लोग लेवल्स क्रिएट करेंगे. उसके बाद में सब लोग जितने भी यूजर्स है वो यूजर्स अपने मॉड्यूल से, अपने यूजर आईडी से एंट्री करेंगे. सो अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा. Then we will go to paperless office. Paperless office is it is more or less the same one. Paperless office is a different concept जहाँ पे हम लोग document manage कर सकते हैं. जैसे हम लोग ने कस्टमाइजेशन बहुत सारे किए हैं, बट ऑडिट से रिलेटेड we found that something that can be shared with the users was attaching of scanned documents at the master level and at the transaction level. In about 2 minutes, here I can show this particular small customization, attaching the document at the master level and at the transaction level and the reports related to that. Yeah. So I've enabled that document. Now हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि डिस्प्ले डे बुक में जाऊंगा मैं, एंड सपोज मैं जगत नारायण ट्रेडर्स ये पर्टिकुलर इनवॉइस में जाता हूँ. नाउ ये इनवॉइस में मुझे कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है जो मेरे कंप्यूटर में है. ठीक है. तो आई विल गो टू दिस स्क्रीन. यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट्स करके आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है. आई विल गो टू दिस स्क्रीन एंड आई विल से ये मेरा इनवॉइस मुझे अटैच करना है, या एक सेल्स ऑर्डर अटैच करना है जिसके बेसिस पे ये इनवॉइस मैंने बनाया है. तो मैंने सेल्स ऑर्डर के लिए यहाँ पे ब्राउज क्लिक किया
I will select the randomly. I will select anything order number 2 this. Okay, and again I will select say perform delivery चालान है, delivery चालान को भी मुझे attach करना है, तो I will select browse and I will select another random voucher. Say I'm selecting the Excel voucher. So you can attach your Excel, PDF, Word document, JPG image file, etc. And similarly I'm just saving this. Now even here in the display daybook, in the daybook it shows here below that what all documents have been attached. So you can even say see in that particular screen also. But this way you can attach the documentation, you can attach the document, and you can also mail from your particular invoice. So जब भी आप वो ओपन करोगे वो ट्रांजैक्शन, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स अटैच दिखेंगे. And also you can mail from that particular screen. Also we have done for authorization, like you can one is the maker and another is the checker, and one person is making the transaction and other will authorize it, and when it has been authorized it will get saved, or else it will show you as unauthorized unless and until the person has the second person or the senior has authorized it. It will show you unauthorized. So I am not covering that here because we are short of time. So we will quickly start with the manufacturing process. So in manufacturing process, there are few transactions, few steps are there. I will quickly show you one by one. So first is the item master enablement. Now item master enablement, firstly how the manufacturing process starts. For example, I am taking an example of the cycle. Yes sir. Yes sir. Yeah. Yes sir. So yesterday हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग का पूरा साइकिल देखा था, और उसके पहले हमने इन्वेंट्री का बेसिक सेटअप क्रिएशन कैसे देखा था. वन ऑफ द थिंग्स दैट कम से कम 4-5, जैसे मैंने आपको 3-4 बार बोला कि भाई कौन सी इंडस्ट्री को कवर करना है, तो फ्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट सेड कि सर हमको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताइए, हाउ डज टैली वर्क्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. वी हैव अबाउट 10 मिनट्स ऑफ टाइम. तो उसके अंदर हमको आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताना है एकदम आराम से, सिंपल तरीके से. So just believe that you are a cycle manufacturer. आप अगर साइकिल मैन्युफैक्चरर है तो आप किस तरह की रॉ मटेरियल की एंट्री करेंगे और कैसे फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, इन अ वेरी ब्रीफ वे हिरल भाई आपको बताएंगे. आई मीन थिंग्स कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स, मोर वर्किंग कैन बी डन, बट एटलीस्ट बेसिक रॉ मटेरियल इनपुट यहाँ पे करना है, मेरा आउटपुट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाके मुझे चेक करना है, इतना बता देंगे ना तो भी आपको एक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का आपको प्रोसेस आइडिया आ जाएगा, और आपको how do you arrive at the cost of your manufactured cycle. So इतना आपको बताना है. Please Hiral bhai, continue. Yeah. So I'll start with the configuration first, right? The item master. Yeah. So I'll start with the item master enablement. Now in item, I will go to inventory. I'll go to stock item and I will alter this. Now suppose this is my finished goods like XC100. I'll create. हाँ एक सिंपल बना दीजिए, एक क्रिएट. ठीक है, I'll create one. हाँ okay, हीरो बाइसिकल सपोज एक क्रिएट कर रहे हैं. Yeah. Suppose we are creating, we are manufacturers of the this hero bicycle, and तो यहाँ पे यूनिट्स रखना जरूरी है, नंबर्स, और सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, BOM इज बिल ऑफ मटेरियल. आपको एक साइकिल बनाने में क्या क्या लगता है, उसकी रेसिपी क्या है, यस कीजिए. या सो ये बिल ऑफ मटेरियल्स कहाँ से आया, अगर आपके स्क्रीन में नहीं दिख रहा है तो यू जस्ट प्रेस F12 हियर एंड आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा बिल ऑफ एनेबल कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल, वो यस करना है एंड यहाँ पे आपको बिल ऑफ मटेरियल्स का ऑप्शन दिखेगा. व्हेन आई प्रेस यस, यहाँ पे मैं एक BOM का नाम दे दूंगा स्टैंडर्ड, या तो सपोज आपके कोई डिफरेंट मॉडल्स है तो मैंने ये स्टैंडर्ड रख दिया है कि ये स्टैंडर्ड BOM है. कितने यूनिट्स बनाएंगे हम लोग, एक यूनिट बनाएंगे. एक यूनिट के लिए मुझे क्या क्या लगेगा. नाउ सपोज मुझे ब्रेक
कंपनी गोडाउन से मैं ले रहा हूँ, कंपोनेंट है ये मेरा, एंड एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी लगेंगे, 2 ब्रेक्स होते हैं राइट। देन आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू 2 या 3 ये ले लूंगा मैं। एक मैंने फ्रेम ले लिया, एक फ्रेम लगेगा एंड 2 टायर लगेंगे, दैट्स इट। एकदम बेसिक अपना साइकिल है, ये स्टैंडर्ड रख दिया एंड यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, दैट्स इट। ये मैंने कंट्रोल करके सेव कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू इन्वेंट्री वाउचर्स। ना इसके पहले आपको बता दूं, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, वाउचर टाइप में जाएंगे और ऑल्टर में जाके से असेंबली लाइन करके मैंने एक क्रिएट किया हुआ है, इसको मैंने स्टॉक जर्नल में रखा हुआ है। एंड ये मैंने एक वाउचर टाइप क्रिएट किया अंडर स्टॉक जर्नल, और स्टॉक जर्नल में मैंने ये लास्ट वाला ऑप्शन जो यस रखा, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, यस किया है मैंने, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यहाँ पे यस होना चाहिए, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो ये असेंबली लाइन का मैंने वाउचर टाइप क्रिएट किया अंडर स्टॉक जर्नल एंड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यस किया, ठीक है। देन वी विल गो टू मेन स्क्रीन ऑफ टैली अगेन, एस्केप करके I will go to inventory vouchers. Now in inventory vouchers, I will again select the stock journal. It will ask me stock journal या assembly line. तो I will select assembly line. आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल दे सकते हैं, whatever. तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हमें क्या बनाना है, तो I will say हीरो बाइसिकल। तो जैसे हीरो बाइसिकल यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये कौन से गोडाउन में जाएगा, से कंपनी गोडाउन में जाएगा। कितनी क्वांटिटी बनानी है, से मुझे 10 क्वांटिटी बनानी है। अब यहाँ पे जादू देखना, जैसे मैंने 10 क्वांटिटीज डाला, ऑटोमेटिकली आप देखोगे ब्रेक 20 आ गया, फ्रेम 10 आ गया एंड टायर 20 आ गया। सो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि कितना क्वांटिटी चाहिए, मेरा रेसिपी एकदम ऑलरेडी स्टैंडर्ड है कि मुझे पता है कि जितनी भी बाइसिकल मैं बनाऊंगा उतने मुझे ये कंपोनेंट्स लगने वाले हैं। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा तुरंत, यहाँ पे मेरा एक नीचे मिनट कॉस्ट दिलीप भाई, आ जाएगा। ओवरहेड या कॉस्ट भी इधर डाल सकते हैं। अगर आपका कोई बाय ओवरहेड प्रोडक्ट है तो वो डाल सकते हैं, या तो ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं 10% या जो भी, अगर आपने अगर ओवरहेड कॉस्ट का इनपुट बनाया है, अभी फिलहाल नहीं है आपका, या जॉब वर्क नहीं चार्जेस है, सपोज। जॉब वर्क चार्जेस मैंने सपोज दे दिया परसेंटेज से, आइदर परसेंटेज या तो से 2000 वो जॉब वर्क चार्जेस लिया जिसने बनाया, तो एक सो मिनट मेरा नीचे कॉस्ट देखेंगे तो आपका कॉस्ट बढ़ गया, इधर 15,100 बढ़ से 17,100 हो गया। या सो पहले 15,1510 कॉस्ट था मेरा प्राइमरी पर आइटम, नाउ 1510 से 1710 हो गया। सिमिलरली वंडरफुल। इलेक्ट्रिसिटी इसका एंड ऑल वो हम इसका लोग ऐड कर सकते इम्पैक्ट ये हो गया कि ये जो ब्रेक्स, फ्रेम और टायर है, ये आपके रॉ मटेरियल में से आउट हो गया है, उतने क्वांटिटी आपको उसकी एंट्री नहीं करनी पड़ी। सेम वे हीरो बाइसिकल आपका नया मैन्युफैक्चर हो गया 10। ओके, तो ये आप 3 आइटम है, तो शायद आप बोले पुनीत भाई इसमें ऑटोमेशन का कहाँ जरूरत है, 3 आइटम हम खुद भी सिलेक्ट कर सकते थे। बात 3 आइटम का नहीं है, बात रेशियो का है। और अगर आप देखेंगे एक बाइसिकल में 3 आइटम नहीं जाती है, एक दूसरी एक कंट्रोल लेकर के पहले एक असेंबली लाइन की कोई एक एंट्री दिखा देंगे हीरो भाई प्लीज। yes sir, yeah, I'll go to this journal assembly line नहीं assembly voucher line, type। हाँ प्रीवियस मंथ की है पूरी। हाँ, हाँ सो ये था तो मेरा एक्चुअल अबाउट 10 जो सामने दिख रही, 6 नीचे है। एक एक्स रॉक जो भी मैन्युफैक्चर किया है, ये प्रोडक्ट बनाया है, उसके गोडाउन में हमने कंपनी गोडाउन में 8 मैन्युफैक्चर किए, तो उसकी वजह से हमको इतने सारे आइटम्स है। नाउ थिंक ऑफ अ असेंबली लाइन और मैन्युफैक्चरिंग पोजीशन वेयर वी हैव गॉट 50 आइटम्स। ये कितना आपका ऑटोमेट कर देता है। राइट फ्रॉम डे वन वी हैव बीन इंसिस्टिंग, डेटा एंट्री वालों को दिमाग कम लगाना चाहिए, डेटा एंट्री वालों को ऑटोमेटेड सिस्टम देंगे तो उनका काम जल्दी एफिशिएंटली होगा। The use of manufacturing journal or this what we have shown is nothing but automation of your out of raw material and in of raw material. ये प्रोसेस जिनको नहीं मालूम है वो क्या करते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं। वो क्या करते हैं, वो एस्केप करो हीरो में, या Alt A, add a voucher, stock journal, select stock journal, Alt F7, या
नॉर्मल स्टॉक जर्नल, Yes. वो ये करते हैं। जिनको ये प्रोसेस नहीं मालूम है वो कंजम्पशन में रॉ मटेरियल डालेंगे, प्रोडक्शन में डालेंगे। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है, आपका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है कुछ भी नहीं मालूम है। आप एक एक करके सिलेक्ट कीजिए और एक एक करके प्रोडक्शन कीजिए। सो दिस इज व्हाट मेनी पीपल डू नॉट आर नॉट अवेयर और डू लाइक डू द अकाउंटिंग लाइक दिस। बट जो स्मार्ट होते हैं या जिन्होंने थोड़ा सा अपने लर्निंग के लिए इन्वेस्ट किया है वो यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और बिल ऑफ मटेरियल, ताकि आप टैली को एक स्टैंडर्ड रेशियो दे दो एंड उसके हिसाब से वो आपको पूरा कैलकुलेट कर देगा। Was this feature useful or not? Please inform on the question mark or in our WhatsApp chat to individually, maybe to myself or to Hiral bhai. Yeah, and also I would like to Hiral add bhai, this one, the stock transfer entry in a very short manner, that I think stock journal. So this way you can internally transfer from one go down to another go down. ये स्टॉक ट्रांसफर का भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। कंपनी गोडाउन, डेस्टिनेशन गोडाउन है, एंड फ्रॉम दिस गोडाउन टू अनदर गोडाउन। यहाँ पे मैं सपोज कंपनी शोरूम से कंपनी गोडाउन में जा रहा है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से हम लोग इंटर गोडाउन ट्रांसफर्स भी कर सकते हैं। यस सर। वंडरफुल। एक बार रिवाइज कर देंगे। या डेफिनेटली। देयर इज वन पर्सन, विवेक भाई बोल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन। let me take the entire verification today once again and see if we have 2 minutes to compare that. Yeah, so today we learned, should we go on the basic audit activation किया, analysis and checking किया, okay, फिर हमने transactions देखा कि कैसे sampling हो सकती है, उसका verification दिया, बहुत सारे audit procedures run किए, repeated transaction, relative size factors, multiple audit procedures. उसके बाद में we saw about cost centers, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बेसिक वर्किंग की, जहां पे हमने सिंपल इंटरेस्ट ऑटोमेटेड कैसे आ सकता है, कैलकुलेशन कैसे हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जैसे कि आपके अल्ट एन फीचर है वो स्टडी किया, और यूजफुल, वेरी यूजफुल कस्टमाइजेशन लाइक ऑडिट ट्रेल, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, मल्टीपल कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू अटैच द डॉक्यूमेंट्स, एनी डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट्स of yours in the voucher. इधर बहुत जनों ने एक क्वेरी पूछते हैं कि सर हमारा टैली स्लो नहीं हो जाएगा अगर हमने हार्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच किए? नहीं, टैली में खाली आपका पाथ स्टोर होता है, डॉक्यूमेंट्स आर इन देयर इन योर हार्ड डिस्क, एंड हार्ड डिस्क स्पेस इज नॉट वेरी कॉस्टली दीस डेज, सो देयर इज नो प्रॉब्लम कि आपका टैली कहीं पे भी स्लो हो जाएगा। एंड फाइनली वी लर्नड अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देयर आर मल्टीपल थिंग्स, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग हो सकता है, वेयर कॉस्टिंग आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है, बट वी थॉट लेट अस कीप इट सिंपल एंड एक साइकिल मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या 3 रॉ मटेरियल और उसके हिसाब से कैसे साइकिल बन सकती है, वो पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया। ओके, सो दिस इज व्हाट इज डन टुडे। विवेक, वी विल टेक टुमारो अर्ली मॉर्निंग external confirmation once again, not now because we have back-to-back lecture of Ramesh Prabhu sir, and that is also very interesting, so we cannot miss that as well, but we will definitely take external confirmation का फिर से अगर अपने को चाहिए तो हम लोग लेक्चर ले लेंगे, और एक ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन का, this again we will take it once again. Yeah, yes sir. Yes Puneet bhai, so we'll take one hour का lecture additionally if anyone has any doubt, so we'll cover that. yes yes, आपको मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, कल एक अनाउंसमेंट हो गया, आज प्लान कर रहे हैं उसका, in the next coming week maybe for 45 minutes or 1 hour during the day time, कैसे टाइम अवेलेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अवेलेबिलिटी कैसा है, we will take one more repeat lecture जहाँ पे हम आपकी जो क्वेरीज, जो क्विक चीज हमने कोई कवर कर ली होगी और वो उसको फिर से एक बार देखना होगा, we'll be able to see that as well. Yes, yeah, please. Okay. तो डायरेक्टर का नंबर शेयर कर दो ना सबको। हाँ, नंबर शेयर किया ना। हाँ, और क्या, they can raise the question. ठीक है, तो पुनीत भाई, we have covered all the questions for today. yes yes, we are covering, मैं साथ में रिपीट में आंसर्स उनको करते जा रहा हूँ। Member, so friends, yeah, so friends, we are having a special webinar series
for 2 days on FEMA rules and regulation that will start from tomorrow, means Saturday, Sunday at 11:30 a.m. So those who are interested to join, request please join. On Sunday we are having two webinars, free webinar for members. First is for 21st June Yoga Day. So we are having a nutrition expert with us, Sheetal Panchal, and the second one is for succession planning through HUF by Dr. Girish Ahuja, Chartered Accountant, and a welcome address by Mr. Rajneesh Jain, CFO of Reliance Jio Intercom Limited. So I request all the members to please join our webinars. And with this, I am requesting our mentor and guide, Shri T.C. Bafna sir, to please give a formal vote of thanks to our speakers, CA Puneet Mehta and Mr. Hiral Soni. Thank you, Abhishek. This is time for proposing the vote of thanks to the integrated permanent speakers on Tele ERP9, CA Puneet Mehta and Mr. Hiral Soni ji, who has given a very detailed discussion and operations on the ARP, on this audit, analysis, cost centers, interest calculation, etc. very nicely. So thank you very much for your nice session over this platform. Thank you very much. Thank you. Thank Sir. you. Thank you, friends. Thank you, everyone. Thank you. So we'll start tomorrow's session on time. So all members are requested to please attend entire session. Thank you, everyone. Thank you, Puneet Bhai and Hiral ji. Thank you, Karan Bhai, Bafna sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.